My dear students, today I want to discuss some more important problems relating with arrangements when the objects are repeated and not repeated. How many different 4-digit numbers can be formed from the digits 2, 3, 4 and 6 if each digit is used only one in a number? Further, how many of these numbers end in a 4, second, end in a 3, end in a 3 or 6? My dear students, now I want to solve this problem. Given that digits are 2, 3, 4 and 6, so total number of given digits is equal to 4. So we have to form number of 4 digits. So we take here 4 boxes and it is a restriction free case. So we fill 4 from right, 4 from ones, tens, 100, 10,000 boxes, 4 ways, and it is from 3 ways, and it is from 2 ways, and it is from 1 way. In this part, there is no objection. So number of 4-digit numbers is 4 into 3 into 2 into 1, that is 24, or factorial 4, or 4p4. In second part, since unit place can be filled up by 4, so there is a restriction. So we start from extreme right, that is from unit place box. So this can be filled by 1 way, that is from 4. Now from extreme right it will be filled by 3, then it will be filled by 2, and then it will be filled by 1. So my dear student, required numbers is equal to 3 into 2 into 1 into 1, that is 6, or 1 into 3p3. 1 into 3p3, 1 is this, and it is 3p3, or 3 into 2 into 1. So my dear student, I hope you must understood the step. Now required number is equal to 3 into 2 into 1 into 1. When in problem second it is given that end in a 3, end in a 3. If a number ends in a 3, then unit place will be filled by 1 way. Then ones, tens, 100, 1000 place will be filled by 3 ways, 100 place will be filled by 2 ways, and 10 place will be filled by 1 way. So it will be 3 into 2 into 1 into 1, that is 6. You can write it 1 into 3p3 or factorial 3 is equal to 6. So my dear student, I have discussed all the method by which this problem will be solved. Now in problem number 3, unit place can be filled up by 3 or 6, that is 2 ways, that is 2 ways. Now 1000 place will be 3 ways, 100 place will be 2 ways, 10 place will be 1 way. So required number is equal to 3 into 2 into 1 into 2, that is 12. That is 2 into 3p3, that is 2 into factorial 3, that is 12. So my dear students, in this way you can solve this problem. Now we want to discuss this problem number 4. How many even numbers of 4 digits can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6? No digit being used more than once. This is condition. That is without repeating. Since we have to form 4-digit even numbers, so therefore we take 4 boxes. 1, 2, 3, 4. And we have to get even numbers by using the digit 0, 1, 2, 3, 4,
5 and 6. So now we fill the unit place by 2 or 0 or 2 or 4 or 6. 0, 2, 4 or 6, that is 4 ways. And here ones, tens, hundred, thousand. Thousands place will be filled by 6 way. 100 place will be filled by 5 way. And 10 place will be filled by 4 ways. So my dear students, now it will be 6 into 5 into 4 into 1, that is 120. When 0 occurs at unit place, my dear student, we will not take 0 here, we will not take 0 here at thousand place. We take 0 here only on unit place. If we will take 0 here on thousand place, it becomes a number of 3 digit. So that how many numbers we have? Digit we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 है. इसमें से हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए? 4 ढंग से भरे. 0, 2, 4, 6, 4 ढंग से. 4 कितना डिजिट, कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 में से तो एक कंज्यूम हो गया. इसमें 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. ये जरूरी नहीं है कि 0 यहाँ भी हो. इसलिए हम बाकी एक डिजिट कंज्यूम हो गया तो 0 यहाँ भी हो सकता है, 0 यहाँ भी हो सकता है. इसलिए हम लोग क्या किए? 0 को यहाँ कंसीडर कर लिए. ध्यान रखो इस सवाल को, हम 2 ढंग से सवाल बनाने की कोशिश किए हैं. 0 यहाँ कंसीडर कर लिए. तो 0 that is 6, 5, 4 into 4. So in this case, when 0 occurs at unit place, then number of ways is equal to 6 into 5 into 4 into 1, 120. When 0 occurs at unit place, हम 1000 place पर 0 को नहीं लिए. तो that is 1 into 6 P3 or 6 into 5 into 4 into 1. And after simplifying, it will be 120. When 0 does not occur at unit place, when 0 does not occur at unit place, हम 0 यूनिट प्लेस पर नहीं लिए. तो ये 3 ढंग से हुआ. और यहाँ भी 0 नहीं लिए, यहाँ भी 0 नहीं लिए. सवाल को देखो, इस सवाल को हम लोग 0 को लेकर कितना नंबर बना, फर्स्ट केस में वो बना लिए. और 0 को नहीं लेकर कितना नंबर बना, 0 को नहीं लेकर यूनिट प्लेस पर नहीं लिए और वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड प्लेस पर भी नहीं लिए. तो बिना 0 और 0 दोनों केस कंसीडर कर रहे हैं, बिना 0 और 0 सहित. तो एनी वन ऑफ रिमेनिंग 6 डिजिट एक्सेप्ट 0. तो यहाँ क्या हुआ? 3 ढंग. यहाँ क्या हुआ? 5 ढंग. यहाँ क्या हुआ? 5 ढंग. यहाँ क्या हुआ? 4 ढंग. तो ये कितना हुआ? 5 into 5 into 4 into 3, that is 300. That is 5 into 3 P52. ये भी लिख सकते हैं. 5 into 3 और ये कितना हो गया? 5P2. इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. तो रिक्वायर्ड नंबर कितना मिला हमको? 300. तो टोटल नंबर हमको कितना मिला? 120 प्लस 300, दैट इज 420. प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझ रहा हूँ कि सवाल को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें 0 को हम कंसीडर कर लिए. एक बार 0 को लेकर बनाए यूनिट प्लेस पर, एक बार 0 को हम यूनिट प्लेस पर लेके बनाए, और फिर दूसरे केस में हम 0 को कहीं नहीं लिए, नहीं तो 1000 प्लेस पर लिए, नहीं तो यूनिट प्लेस पर लिए. एक मेथड. पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे. इस दोनों केस को हम लोग लिए. अब हम शॉर्टकट मेथड से सवाल को बनाना चाहते हैं, अल्टरनेटिव मेथड. अब अल्टरनेटिव मेथड आप देखिए, हियर 0, 2, 4, 6 4 ढंग से ये हुआ, और ये अब हम वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, यहाँ पर हम 0 लिए
तो 0 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, चूँकि 4 ढंग से हम भर रहे हैं। और यहाँ भी हम 6 ढंग से लिए, 7 डिजिट है, इसमें से कोई एक डिजिट कंज्यूम हुआ, हो सकता है वह 0 हो सकता है नहीं भी हो, इसमें हम 0 इंक्लूड कर रहे हैं। हम यहाँ पर 0 आ भी सकता है। ये 6, 5, 4 इंटू 4, ये 480 नंबर हुआ। कितना हुआ? 480 नंबर्स। समझने की कोशिश करो, ये शॉर्ट पड़ेगा। लेकिन इसमें तो एक केस ऐसा भी है कि जो 0 यहाँ पर हो सकता है। वैसा कितना नंबर बनेगा जिसमें 0 1s 10s 100 1000 प्लेस पर हो? उस केस को हम लोग डील कर लेते हैं। इस नंबर में 0 इंक्लूड भी है, कहाँ पे? 1000 प्लेस पर। लेकिन 1000 प्लेस पर 0 इंक्लूड रहने से 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो वैसा कितना नंबर बना जिसमें 1000 प्लेस पर 0 है? उसकी संख्या हम निकाल लिए दूसरे केस में हम निकाल लिए। इसमें केस में क्या किए? 2, 4, 6 0 से नहीं भरे यूनिट प्लेस को। अब 1000 प्लेस को हम 0 से भर दिए एक तरीका से। तो 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इस तरह कितना नंबर बना? 60 नंबर इसमें ऐसा है जिसके कि 1000 प्लेस पर 0 है। तो 60 नंबर ऐसा है जिसके 1000 प्लेस पर 0 है, तो वो अधिक है, वो तो 3 डिजिट का नंबर हो गया। हमको चाहिए 4 डिजिट का नंबर, इसलिए 60 नंबर को घटा दिए। आंसर आ गया 420। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अल्टरनेटिव मेथड से अधिकतर बच्चे समझते हैं ये नॉन जीरो और जीरो। एक बार 0 को सब पर लिया, एक बार 0 कहीं नहीं लिया, दोनों केस कंसीडर किया, तब ये बना। ये सवाल लंबा बना, लेकिन हम दोनों अप्रोच से आपको सवाल बनाने के लिए समझा रहे हैं ताकि आप इसका कंसेप्शन रखिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट, I want to discuss next concept by which you can solve the problem. This is a very, very interesting concept. Problem based on number of permutation when repetition of things is allowed. इसी को देखना है, समझना है। यहाँ तो समझ में आता है क्या है? n ऑब्जेक्ट्स है और r बक्सा है। n ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। जितना टाइम हमको लेना है उतना हम बॉक्स बना देंगे। और कितने ऑब्जेक्ट को लेना है? n ऑब्जेक्ट्स को। तो पहला बॉक्स को हम कितने ढंग से भरेंगे? n ढंग से, दूसरे को n ढंग से, तीसरे को n ढंग से, आर्मा को n ढंग से। इसलिए टोटल नंबर कितना हो गया? n टू द पावर r। प्रिय विद्यार्थियों, देखने में जितना सहज है, सवाल को पकड़ने में उतना ही कठिन है। इसलिए सवाल को पकड़ने के लिए कुछ हम अनुभव से बता रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकल बात जो किताब में लिखा हुआ है उसको ही बता रहे हैं। इसलिए दोनों मेथड का हम यूज किए हैं। आशा है आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला केस, सवाल को पढ़िए और सेलेक्ट कीजिए कि 2 ऑब्जेक्ट में से कौन ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है। फिर से सुनिए, सवाल को पढ़िए, रीड पेशेंसली द प्रॉब्लम and then select which one is repeating. दोनों में से कौन रिपीट कर रहा है उसको सोचिए, सेलेक्ट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। नाउ स्टार्ट विथ थिंग इज नॉट बी रिपीटेड, और उस थिंग से स्टार्ट कीजिए जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, प्रिय विद्यार्थियों, ए जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट। इन हाउ मेनी वेज can in how many ways can we send invitation cards to them if he has 3 servants to carry the cards? प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल में कह रहा है कि एक आदमी, एक जेंटलमैन अपने 6 फ्रेंड को इनवाइट करना चाहता है, इनवाइट करता है और उसके लिए अपने 3 सर्वेंट के द्वारा वो इनविटेशन कार्ड भेजता है। तो यदि थ्योरेटिकल ढंग से सवाल को समझिएगा तो यदि आप उसमें क्वेश्चन कीजिए कि इनविटेशन कार्ड सर्वेंट पहुंचाता है किसके पास? फ्रेंड के पास। तो इनविटेशन कार्ड तो सर्वेंट रिपीट करेगा या फ्रेंड रिपीट करेगा, इस बात को समझना है। यह थ्योरेटिकल बात है,
को रिपीट क्या कर रहा है इसमें? सर्वेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? पहला सर्वेंट भी एक फ्रेंड को दे सकता है इनविटेशन, दूसरे फ्रेंड को भी दे सकता है, तीसरे फ्रेंड को भी दे सकता है, चौथे फ्रेंड को भी दे सकता है, पांचवें फ्रेंड को भी दे सकता है, छठा फ्रेंड को भी दे सकता है। तो मैं किताब से हटकर थोड़ा व्यवहारिक ढंग से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो इसका जवाब मिलता है हमको। क्या? कि फ्रेंड आएगा लेटर लेने, या हम लेटर देने के लिए फ्रेंड के पास जाएंगे? तो लेटर देने के लिए फ्रेंड के पास जाएंगे, ठीक है। तब कितना फ्रेंड है? 6, F1, F2, F3, F4, F5, F6। लेटर देने का काम कितने स्टेप में होगा? इस तरह सवाल बनाना चाहिए, स्टेपिंग करके, प्याज के छिलका की तरह छिल के सवाल बनाना चाहिए। कैसे? तो पहले फ्रेंड के पास सर्वेंट नंबर 1 भी लेटर दे सकता है, सर्वेंट नंबर 2 भी लेटर दे सकता है, सर्वेंट नंबर 3 भी लेटर दे सकता है। क्योंकि यहाँ कौन रिपीट कर रहा है? सर्वेंट इज रिपीटिंग, नॉट फ्रेंड इज रिपीटिंग। तो दूसरे फ्रेंड के पास भी सर्वेंट नंबर 1 जा सकता है, सर्वेंट नंबर 2 जा सकता है, सर्वेंट नंबर 3 जा सकता है। तीसरे फ्रेंड के पास भी सर्वेंट नंबर 1 जा सकता है, सर्वेंट नंबर 2 जा सकता है, सर्वेंट नंबर 3 जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, लेटर देने का काम क्या होगा? 3 स्टेप में होगा। कौन स्टेप? पहला स्टेप कि सर्वेंट 1 भी पहुंचा सकता है, सर्वेंट 2 भी पहुंचा सकता है, सर्वेंट 3 भी पहुंचा सकता है। एक काम को कितने स्टेप में कर रहा है? 3 स्टेप में कर रहा है एक फ्रेंड को लेटर देने का काम। तो 3 इज द बेस, 3 इज द बेस, 3 बेस हो गया। ये भी 3 ढंग से, ये भी 3 ढंग से, ये भी 3 ढंग से। इसलिए 3 कितने बार आया? 6 बार। 3 to the power 6, 3 to the power 6। जो रिपीट किया वो बेस हो गया, जो रिपीट नहीं किया वो पावर हो गया। ये अपने मन में कहीं से बैठा लीजिए। जो रिपीट किया वो बेस हो गया, जो नहीं रिपीट किया वो पावर हो गया। इसको अपने मन के किसी कॉर्नर में बैठा लीजिए, किसी किताब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ। ये अपने अनुभव से सवाल के नेचर को देखकर हम और स्टेपिंग करके हम इसको पहचान सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इस सवाल को बनाने का कोशिश किया, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखा। जितनी बात आपको कहा, तो ये बुकिश मेथड हुआ। इससे हम पहचाने कि कौन रिपीट करता है। फर्स्ट सर्वेंट, सेकेंड सर्वेंट, सेम फ्रेंड। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला सर्वेंट पहले फ्रेंड को दे दे और दूसरा सर्वेंट भी पहले फ्रेंड को दे दे। सेम फ्रेंड को 2 सर्वेंट लेटर नहीं दे सकता है। लेटर तो एक ही है, इनविटेशन कार्ड तो एक ही है, तो उसको जब भी देगा एक सर्वेंट देगा। तो फ्रेंड इज नॉट रिपीटिंग। फर्स्ट फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड, सेम सर्वेंट, फर्स्ट फ्रेंड। एक सर्वेंट फर्स्ट फ्रेंड को भी दे सकता है, सेकेंड फ्रेंड को दे सकता है। तो यहाँ कौन रिपीट कर रहा है? सेम सर्वेंट। इसलिए मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि कैसे आप रिपीट कर रहा है उसको निकालोगे। ये सबसे बड़ी खूबसूरत है, खासियत है और खूबसूरती भी है काउंटिंग का, कि दिमाग लगाना, चालाकी से चीज़ों को सोचना। ज़रूरी नहीं है इसमें कि आप देख रहे हैं कि हर एक सवाल में एक दूसरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। देयर इज नो लिंक फ्रॉम द प्रायर चैप्टर्स। इट इज़ ए वेरी इंडिपेंडेंट चैप्टर और इसमें किसी का ज्ञान नहीं है, केवल आपको तार्किक ढंग से सोचने का जरूरत है। अब सेकेंड मेथड, जो हम सेकेंड मेथड में बुक के ढंग से हम नहीं सोचे हैं। हमने कहा कि फ्रेंड 6 गो है, 6 गो फ्रेंड बना दिया और उसके पास लेटर देने का काम सर्वेंट 1 भी कर सकता है, सर्वेंट 2 भी कर सकता है और सर्वेंट 3 भी कर सकता है। तो वर्क डन कब हुआ? लेटर पहुंचना एक फ्रेंड के पास, फिर दूसरे फ्रेंड के पास, फिर तीसरे फ्रेंड के पास, फिर चौथे फ्रेंड के पास, फिर पांचवें फ्रेंड के पास, फिर छठे फ्रेंड के पास। इनटू क्या दिखाता है? इनटू दिखाता है कि सबको लेटर देने का काम एक दूसरे पर डिपेंड है, तभी लेटर देने का काम खत्म होगा। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ। और एक फ्रेंड को लेटर हम 3 ढंग से दे सकते हैं, 3 स्टेप में दे सकते हैं। वही 3 यहाँ पे आया। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से सवाल को स्प्लिट करके, पहले भी मैंने कहा कि डिवाइड एंड रूल इज़ द पॉलिसी
टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप सवाल को बना पाएंगे। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करना चाहते हैं। इन हाउ मेनी वेज 3 prizes कैन बी गिवन अवे टू 7 boys when each boy is eligible for any of the prize। पहले इस सवाल को ध्यान से सुनिए कि 3 प्राइज है और 7 लड़का है, प्रत्येक लड़का कोई भी प्राइज लेने के लिए एलिजिबल है। तो ये कैसे बनेगा? रिपीट कौन करेगा? इस बात को समझिए, प्राइज करेगा या लड़का करेगा? एक प्राइज 2 लड़का नहीं ले सकता है। एक प्राइज, फर्स्ट प्राइज 2 लड़का ले सकता है, हाँ ले सकता है, लेकिन फर्स्ट प्राइज 2 लड़का ले सकता है, लेकिन एक लड़का 2 प्राइज नहीं ले सकता है। बात समझिए, कंटेंट को समझिए। क्या? एक लड़का 2 प्राइज को नहीं ले सकता है। तब एक प्राइज, फर्स्ट प्राइज 2 लड़का ले सकता है। देखते हैं नंबर बराबर आ गया तो उसको फर्स्ट प्राइज 2 लड़का को मिल सकता है। तो यहाँ कौन रिपीट कर रहा है? इस बात को समझिए। यहाँ पर कौन रिपीट कर रहा है? सेम प्राइज। यहाँ पर सेम बॉय, फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज एक लड़का ले सकता है। ले सकता है? फर्स्ट प्राइज और सेकेंड प्राइज नहीं ले सकता है। लेकिन सेम प्राइज, एक प्राइज, ये सेम प्राइज 2 लड़का ले सकता है। तो प्राइज रिपीट कर रहा है, प्राइज रिपीट कर रहा है। तो फर्स्ट प्राइज यहाँ पर देखिए, फर्स्ट प्राइज पहला लड़का भी ले सकता है, दूसरा भी लड़का भी ले सकता है, तीसरा भी लड़का ले सकता है, चौथा लड़का भी ले सकता है, 5वां भी लड़का ले सकता है और 7वां भी लड़का भी ले सकता है। प्राइज रिपीट कर रहा है। तो फर्स्ट प्राइज पहला लड़का भी ले सकता है, दूसरा लड़का भी ले सकता है, तीसरा लड़का भी ले सकता है और 7वां लड़का ले सकता है। तो फर्स्ट प्राइज लेने का पॉसिबिलिटी कितना है? 7। फर्स्ट प्राइज लेने का पॉसिबिलिटीज कितना है? 7। फिर सेकेंड प्राइज लेने का पॉसिबिलिटीज, वो भी 7 लड़का ले सकता है और थर्ड प्राइज भी 7 लड़का ले सकता है। 7 × 7 × 7, it will be 343. It will be 2 prize can be given to the same boy, but 2 boys cannot get the same prize. ये बात दिमाग में रखना। Therefore we must start with same prize. इसलिए हम लोग सेम प्राइज से सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से कौन रिपीट कर रहा है ये बात को समझो। कौन रिपीट कर रहा है इस बात को समझने का चेष्टा करना है और इस तरह से हमको सवाल बनाना है। सेम बॉय, एक लड़का 2 प्राइज को नहीं ले सकता है, लेकिन एक प्राइज 2 लड़का ले सकता है। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि फर्स्ट प्राइज भी एक लड़का ले सकता है, 2 लड़का ले, फर्स्ट प्राइज कोई लिया और फिर कोई दूसरा लड़का भी फर्स्ट प्राइज ले सकता है। इसलिए इस बातों को समझने का कोशिश करना। सेक्रेट लॉक प्रॉब्लम। ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 rings, each marked with 10 different letters. In how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock? प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल को सप्लीमेंट्री या कहो मेथड से हम सवाल को बना सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्या मेथड हुआ? सप्लीमेंट्री मेथड हुआ कि 10 डिफरेंट लेटर्स को यूज करके ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 rings which marked with 10 different letters. In how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock? 3 रिंग है तो ठीक है, तो 3 रिंग में पहला रिंग को भी हम 10 ढंग से भर सकते हैं, दूसरे रिंग को भी हम 10 ढंग से भर सकते हैं, तीसरे रिंग को भी हम 10 ढंग से बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितना हुआ? 1000। ऐसा भी आ सकता है सब में ए हो, सब में बी हो, ABC हो, इस तरह भी हो सकता है। तो 1000 में से एक ही केस ऐसा होगा जो सक्सेसफुल होगा और दूसरा अनसक्सेसफुल होगा।
नहीं, तो सक्सेसफुल केस को हम घटा दिए टोटल केस में। ये टोटल निकाल लिए हम कोड, टोटल कोड इज 1000, लेकिन इसमें से एक ही तो सक्सेस होगा, एक ही कोई कोड से तो वो ताला खुलेगा। तो ताला खुलने के लिए एक रास्ता, एक पोजीशन, एक वे, तो टोटल केस 1000, एक केस जिसमें कि ताला खुलेगा। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इज 1000 - 1 999। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह सीक्रेट लॉक से संबंधित सवाल को आप बनाइएगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, each of the 6 squares in the strip shown in the figure given below is to be colored with any of 10 different colors. To start, no two adjacent squares have the same color. Find the number of ways of coloring the strip. प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कहा है 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर है और 10 कलर हमारे पास है। तो इस तरह हम कलरिंग करें कि कोई एडजेसेंट साइड में वही कलर नहीं आ जाए। तो मेरे हाथ में 10 कलर है, तो पहला स्ट्रिप को तो हम 10 कलर से भर दिए। अब मेरे हाथ में क्या रहा 9, तो इसका और इसका कलर सेम नहीं हो, इसका और इसका कलर सेम नहीं हो, तो इस कलर से जिससे हम इसको कलरिंग किए उसको बाहर कर दिया, आउट किए। तो मेरे पास कितना बचा 9, मेरे पास कितना बचा 9, इसको 9 ढंग से। अब इससे जो 9 ढंग से कलर किए उसको आउट कर दिए और इसको ले लिए जिससे इसको कलर किए थे, क्योंकि एडजेसेंट कलर का नहीं होना चाहिए। तो अब फिर मेरे हाथ में तो हमेशा 9 बच रहा है, मेरे हाथ में हमेशा 9 बच रहा है। क्या बचाना है? केवल जिस कलर से इसको किए वो कलर को बाहर कर दिए, तो ये वाला कलर फिर जुट गया। तो फिर तो मेरे पास 9 रहा, फिर उसको हटा दिए जिससे ही कलर किया। तो फिर हम क्या किए, ये वाला कलर उसमें जुट गया। तो हमेशा हमारे हाथ में कलर कितना रहा 9, इसलिए ये घर भी 9 से भरा, ये घर भी 9 से भरा, ये घर भी 9 से भरा, ये घर भी 9 से भरा। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव फॉलोड मी, यू हैव अंडरस्टूड मी। नाउ मैं इसको फिर दोहराता हूँ। मेरे पास 10 कलर है, सवाल में है कि ये स्क्वायर बना हुआ है 6, तो कह रहा है 2 एडजेसेंट स्क्वायर में सेम कलर नहीं हो। तो पहले को तो हम 10 कलर से कलर कर दिए, जिस कलर से मान लिया रेड से किए तो रेड हटा दिए। तो मेरे पास अब कितना कलर रहा 9, फिर इसको 9 ढंग से किए, जिससे इसको कलर किए उसको हटा दिए, फिर ये कलर जोड़ दिए। तब तो फिर कलर नंबर 9 हो गया, इसके लिए कलर नंबर 9 हो गया इसके लिए। इससे जो किए थे उसको हटा दिए, इससे जिसको हम कलर किए थे उसको हटा दिए, फिर ये वाला कलर जुट गया, तो फिर इसमें 9 हो गया। इस तरह हर एक बॉक्स में 9 कलर हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटिंग दी डिजिट या रिपीटिंग दी नंबर्स, रिपीटिंग दी कलर्स, रिपीटिंग दी ऑब्जेक्ट्स का। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 10 × 9 × 9 × 9 × 9, 10 × 9 to the power 5, 10 × 9 to the power 5 will be the answer. Now my dear student, I want to solve some more problems. 2 different letters of an alphabet are given. Words with 5 letters are formed from these given letters. Find 10 different, not 2, 10 different letters of an alphabet are given. Words with 5 letters are formed from these given letters. Find the number of words which have at least 1 letter repeated. यह भी सप्लीमेंट्री मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। 10 लेटर है डिफरेंट हमको, और 5 लेटर्स फॉर्म करना है, तो 5 बॉक्स ले लिए। और इस सवाल में कह रहा है पहले हम लेटर्स रिपीटिंग से कितना सवाल बना, कितना लेटर बना, कितना वर्ड्स बना। हम ले लिए ये 10 to the power 5। और लेटर डिजिट्स नॉट रिपीटिंग से कितना बना, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 10p
p to the power 5। अब रिपीटिंग से कितना बना 10 to the power 5। यहाँ डिजिट रिपीट कर रहा है टोटल वर्ड, और इसमें से 10p5 में कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है इसमें 10p5 में। तो टोटल लेटर बना लिए वर्ड्स या नंबर जितने की डिजिट रिपीट कर रहा है 10 to the power 5, और उसमें से एक भी रिपीट नहीं कर रहा है, वो 10p5। दोनों को घटा दिए, उसमें वो सारा केस हो गया जिसमें एक लेटर भी रिपीट होता हो। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ये सवाल बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। ये दोनों सवाल बहुत ही अद्भुत है और परीक्षा में पूछा जाता है। आई होप you have understood, you have followed. By taking the knowledge of this concept, I hope you would be able to solve the problem of arrangement of different types. I hope you will do better in this examination. Thank you very much.